Good evening, sir. General Chaturvedi, sir. Good evening. Sudhakar here. Hi, good evening, good evening. आप सभी को नमस्कार। इंडस रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आयोजित वेबिनार जिसका विषय पहलगाम नरसंहार भारत पाकिस्तान गतिरोध बनाम इंडस जल संधि में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वेबिनार एक संक्षिप्त वेबिनार है जिसमें हमारे आमंत्रित वक्ता हैं मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी LVSM VSM। अन्य आमंत्रित वक्ता है मेजर जनरल सुधाकर जी VSM। आमंत्रित वक्ता अपनी बात कहेंगे, उससे पहले वेबिनार के विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं IIRF के जनरल सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन राजशेखर मेहता शौर्य चक्र विजेता को आग्रह करूंगा कि विषय पर प्रकाश डालें। Thank you, Dr. Badria. First of all, welcome to all, ladies and gentlemen, on this IIRF platform to participate in this very serious topic and something that the whole nation is seized of. Indo-Pak hostilities and incidents of terror attack in Jammu and Kashmir are not something new to us in India. But this time it is something that is not the same. Because there is something that is very, very different from the past. The latest Pahalgaon incident, ladies and gentlemen, has been very different, not just on one account, but on two accounts. One, I would say anyone who has little knowledge or experience of J&K insurgency, and I had 2 tenures in the valley minded, will know that there had always been an unwritten understanding between the locals and the terror operators. And that understanding, ladies and gentlemen, was that never to target tourists. Why? Because Kashmiri insurgents knew that the locals knew that the tourists were their bread and butter. They were their sole means of livelihood. Therefore, since 1980s, when the insurgency had just started, until Pahalgaon incident of 22nd April 2025, that is, in this 40 long years of insurgency, never, ever terrorists attacked tourists, Indian or otherwise. They attacked security forces, they attacked government officials, they attacked pilgrims or their local dissidents, but never the tourist. This unwritten principle, gentlemen, has been brutally violated this time. Secondly, till now, the nature and character of the so-called Kashmiri insurgency was that they claimed to be fighting for political power and independent identity that was away from India. But on 22nd April 2025, that has changed. The manner in which Hindu tourists were rounded up, they were segregated from others. Their faith were verified, ascertained in a vulgar manner, and later they were cruelly and barbarically executed in the presence of their children, wives, and family members. This, ladies and gentlemen, gives a complete different dimension to this problem. I feel it is a blatant declaration of the master puppeteer, the one who usually orchestrates such incidents, that it is no longer about territory. It is no longer about Kashmir. Now it is all about religion. It is about jihad. It is not just Kashmir. It is about declaration of the Ghazwa-e-Hind. It is not about freeing the Kashmir territories from Indian control anymore, but about freeing the entire Hindustan from the Hindu control. And I have no hesitation in drawing a parallel. When the Islamist gives a battle cry of river to sea, Palestine will be free, it clearly indicates that it is not about Palestine. It is about the destruction of a sovereign state.
Similarly, ladies and gentlemen, 22nd April is sending a resounding message that it is not about Kashmir. It is about Hindus. It is about India. Kashmir is just an alibi. To view this turn of events and switching off gear by the masterminds of these events in isolation with global Islamic jihad unleashed by the Muslim Brotherhood, funded and fueled by Gulf money, mainly Qatari and Iranian terror funding, that is creating havoc in Europe, in Belgium, Denmark, Germany, Britain, France, in America, and responsible for destabilizing the entire Middle East. Ladies and gentlemen, the wire is all interconnected. It is a global symphony of Islamic terror that is being played out on a global scale. Unless we recognize and accept this glaring fact and the elephant in the room, any attempt to treat this problem as Kashmir insurgency or India-Pakistan issue will be a great folly, akin to burying our face in the sand like an ostrich. I am glad that we have today with us two very experienced domain experts who will throw more light on what is happening to us today in India. Major General Chaturvedi, besides being a security expert, is an authority on Indus Water Treaty between India and Pakistan. And he has written many books and tons of articles on this subject. And Major General Sudhakarji has the first-hand, long and deep experience of Kashmir insurgency as well as insurgency in the eastern parts of our country. And he holds great insight into terrorism and how it impacts Indian security. I will not take much time because we will give the more time to the experts to speak. And with this, I will hand over to Dr. Badvia to take the session further. Thank you very much, ladies and gentlemen. धन्यवाद राजशेखर मेहता सर। इससे पहले कि मैं हमारे आमंत्रित वक्ता मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त बायो नोट पढ़ना चाहूंगा। मेजर जनरल Ajay Kumar Chaturvedi is a veteran of Indian Army and engineer by training. Did BTech Mechanical from College of Military Engineering Pune, MTech Combustion and Propulsion from IIT Madras. He also did his post-graduation in management MMS from Osmania University and was awarded MPhil from Madras University on Strategic Studies and National Security. After a distinguished service for over 38 and a half years in uniform to the nation, he retired in 2012. During his service, among the appointments he tenanted, the important ones were command of an engineering regiment, command of a training center, Deputy Director General of Financial Planning of the Indian Army, Assistant Chief of Integrated Defense Staff and Defense Intelligence Agency, Chief of Staff of a Tri-Service Command, Chief Engineer of a Command Theatre, and Additional Director General at the Integrated Headquarters of MOD. He also has been on the teaching of the directing staff of the College of Military Engineering and the College of Defense Management. For his outstanding service, he was awarded 4 times during his service, twice by the President of India, once by the Chief of Army Staff, and once by the GOC-INC Central Command. Post-retirement, he has been awarded the Atal Samman for Military Engineering, the Karambir Award for Lifetime Achievement, and Raman Lal Agrawal Memorial Kalam, Chairman of the Organizing Committee of the Veer Award for Writing during 44th Dr. Sultan Shakir Hashmi Kalamveer Award of Hindi Sahitya Sansthan, Lucknow. Post his retirement from Army, he has been writing and lecturing extensively on national security, disaster management, and value-based leadership. His more important written works include Water, a Source of Future Conflicts, Nuclear Energy in India's Energy Security Matrix, and Appraisal, Role of Pakistan in India's Energy Security and Disaster Management. His latest book is Strategic Reflection 2024, released on 16 December 2024. He is also very active on lecture circuit. Currently, he is the Senior Vice Chairman of a Lucknow-based think tank, STRIVE. He is also the convener of a think tank, namely Vimarsh of Vivekanand Kendra, and the Executive Director for Uttar Pradesh and Uttarakhand for another think tank, namely Eco Development Foundation. So we welcome you, sir. आपसे आग्रह है कि अपना विषय थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बालदिया। आज का जो ये टॉपिक है
ये जो इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है, जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई 22 तारीख को, जबकि 26 सैलानी पहलगाम में टेररिस्ट की गोलियों के शिकार हुए। तो ये दहशतगर्दों को जो जवाब देने के लिए हिंदुस्तान जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया था। इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से मुझे इसका हिंदी जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ड समझ में आता है वो ये है कि सस्पेंड कर दिया इस ट्रीटी को। एंड इसके बारे में बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के शक शुबे हैं कि क्या इससे कुछ होगा या नहीं होगा। ये तो लॉन्ग टर्म है, इससे कुछ नहीं होगा, पानी आप रोक नहीं सकते हो, वैली पानी के अंदर डूब जाएगी तो कैसे काम चलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। तो आज मेरा प्रयास ये होगा कि अगले 20 मिनट में इसमें से कुछ अनरेबल कर सकूं कि क्या इसका इम्प्लीकेशन है, क्या ये ट्रीटी है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि ज्योग्राफी, अगर आप गौर करें ये जो नक्शा दिख रहा है, इसमें इंडस नदी जो है ये निकल रही है कहाँ से? तिब्बत से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडस नदी है मानसरोवर से निकलती है। दूसरी, इसमें कुछ नदियां ईस्ट से हैं, मतलब पूर्व से हैं, जो 5 नदियां हैं, जिसमें पहली है जिसको कहा जाए सतलुज, जो कि रक्षताल तिब्बत से निकलती है और उसमें और भी नदियां जुड़ती जाती हैं और बाद में ये हिंदुस्तान में आ जाती है। दूसरी नदी है ब्यास, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, भारतवर्ष के अंदर ही है वो। तीसरी नदी है रावी, जो कि धौलाधार रेंजेस में से निकलती है और ये जाती है नीचे। ये 3 नदियां हुई। इसके बाद 3 नदियां और हैं, एक वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, और एक जो निकलती है बारालाचला के नीचे से वो है चेनाब। एक्चुअली टांडी एक जगह है जिसमें जाकर के ये चंद्रा और भागा 2 नदियां मिलकर के चेनाब बन जाती है। और इंडस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये तो ईस्ट से नदियां हैं, जिसमें से इंडस यानी सिंधु नदी, चेनाब और झेलम को वेस्टर्न नदियां बोला जाता है, और रावी, सतलुज और ब्यास को ईस्टर्न नदियां बोला जाता है। इसके अलावा इंडस में कुछ नदियां वेस्ट से भी आती हैं। इसमें बहुत सारी नदियां हैं, श्योक, सुरू, इस तरह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी है काबुल नदी है। जो काबुल नदी है, इसमें से बहुत सारा पानी आता है, ये अटक पे इंडस में आके मिलती है। तो ये तो हो गई एक तरह से ज्योग्राफी। इंडस जो है भारतवर्ष में जो लद्दाख में आती है, फिर बटालिक में ये चली जाती है पाकिस्तान में, और उसके बाद ये पाकिस्तान में ही बहती है। लेकिन जो चेनाब और झेलम है ये हमारे यहाँ, तो इसमें एक चीज ये जानने की बहुत जरूरत ये है कि इसमें जो नदियां, कुछ राइपेरियन नदियां जो हैं कि जो जिसमें कि इंडिया अपर राइपेरियन है, जो नदियां भारतवर्ष में निकलती हैं वो इंडिया अपर राइपेरियन है। लेकिन जैसे कि इंडस है और सतलुज है, इन दोनों में इंडिया मिडिल राइपेरियन है, क्योंकि ये नदियां जो हैं पहले तिब्बत में निकलती हैं और उसके बाद इंडिया में आती हैं और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती हैं। तो इसमें जो एक बहुत जरूरी जानने की चीज ये है, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं थोड़ा इसी में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये रिवर सिस्टम की कुछ खासियत आप जान लीजिए। ये नदियां जितनी हैं ये ग्लेशियल नदियां हैं, और इसका इम्प्लीकेशन ये कि जो हिमालय की ग्लेशियल नदियां हैं ये बहुत ऊंचाई से आती हैं, इसलिए अपने साथ बहुत सारी सिल्ट लेके आती हैं, और जिसकी वजह से धीमे धीमे करके जो इनके रिजर्वायर बनते हैं उसमें जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी पानी की है वो कम होती जाती है, और उसके इम्प्लीकेशन है जो हम बाद में देखेंगे। जैसा मैंने बताया, इंडस और सतलुज ये चाइना से निकलती हैं और बाकी इंडिया में है। पाकिस्तान सब केसेस में लोअर राइपेरियन है। इंडस, झेलम, चिनाब, जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें ये एक बहुत गौर से ध्यान देने वाली बात है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो 1850 के आसपास उन्होंने एक कैनाल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश किया जो एसेंशियली ईस्टर्न रिवर्स पे था, यानी कि रावी, सतलुज और ब्यास पे। और ये 19th सेंचुरी के मिडिल से लेकर के
और 20th सेंचुरी के शुरू तक ये काम चलता रहा. नो कैनाल नेटवर्क डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न रिवर, दैट इज इंडस, चिनाब, झेलम पे कोई कैनाल नेटवर्क नहीं बना था. दो मेजर हेडवर्क्स बने जो ये कैनाल नेटवर्क था इसको सपोर्ट करने के लिए. एक था माधोपुर जो रावी नदी के ऊपर था, और एक जो बना वो फिरोजपुर में. माधोपुर पे जो बना उसकी एक और खसूसियत है कि माधोपुर में इस हेडवर्क के नीचे 4 नाले और निकलते हैं जो इसमें आके मिलते हैं, और करीब 2 MF पानी उनमें भी होता है, जिनका नाम है बेन, बसंतर, तरना और उज. तो ये पानी जो है ये JNK में होता है. तो इसलिए जो एक कैनाल नेटवर्क था, अब मैं इसको सम अप करूं तो एक कैनाल नेटवर्क जो बना था ये बेसिकली पंजाब, हिमाचल और JNK के को उनके इरिगेशन सिस्टम के लिए था. जो पुराने लायलपुर और मनगोमरी डिस्ट्रिक्ट थे, जो आज के जो फैजलाबाद है, वहां पे जो ये था ये उन जगहों के लिए कैनाल था. तो इसको आप पॉइंट को याद रखिए क्योंकि इसका एक इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के ऊपर. अच्छा, इसमें 3 ट्रीटी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक UN कन्वेंशन ऑन ट्रांस बॉर्डर चैनल्स 1997 जो राइट ऑफ राइपेरियन स्टेट देता है, जिसके हिसाब से राइपेरियन स्टेट्स को राइट्स हैं, नीचे वाले का भी पानी आप रोक नहीं सकते हो. सरप्राइजिंगली पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी नहीं है और अफगानिस्तान भी नहीं है. वियना कन्वेंशन, इसके जो ट्रीटीज का लॉ ऑफ ट्रीटीज है, इसके ऊपर 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 और 62. 60 में ये ट्रीटी टर्मिनेट की जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है इफ मटेरियल ब्रीच ऑफ प्रोविजन अकर्स, कि कोई जो ट्रीटी में काम नहीं हुआ तो उसको अगर ब्रीच कर दिया गया है तो आप इसको सस्पेंड कर सकते हो. दूसरा सेक्शन 62 जो एड्रेस करता है टर्मिनेशन और विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी ड्यू टू फंडामेंटल चेंजेस सर्कमस्टांसेस. अब देखेंगे हम लोग IWT पे इस पे कैसे असर होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये इस शताब्दी के शुरू में बने थे, जिसमें जो छठा जो है वो ये कहता है कि सस्टेन मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030. इसका मतलब वाटर को एक तरह से इम्प्लीकेशन इसका ये है कि ये एक तरह से ह्यूमन राइट बन जाता है. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, इसमें जो एक टाइमलाइन देख लेते हैं. 1850 में कैनाल का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ. बेनिफिशियरीज पंजाब, राजस्थान एंड राजस्थान क्यों? क्योंकि जो फिरोजपुर नेटवर्क था यहाँ से 2 नहर निकल रही थी. एक नहर थी दीपालपुर जो कि ये मुल्तान के एरिया के लिए थी, और दूसरी मतलब साउथ ऑफ लाहौर, एंड दूसरी थी गंग कैनाल जिससे कि बीकानेर में पानी जाता था. एक फिर 1947 में जब ये आया तो पाकिस्तान का क्लेम था कि ये नहर सिस्टम जो बना था ये तो हमारे लिए बना था, उन जिलों के लिए बना था जो पाकिस्तान में अब गए, तो लीगेसी राइट्स हमारे हैं. इंडिया ने बोला कि नहीं, अब तो ये होगा डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट पे. अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको हरियाणा वगैरह में पानी देना है, तो हमें ये हमारे फेवर. तो ये डिसीजन नहीं हो पाया, तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ 1947 में जो वैलिड था 31 मार्च 48 तक. इसके मुताबिक हम पानी इंडिया उसको देते रहेंगे और तब तक कोई ट्रीटी हो जानी चाहिए थी. लेकिन अफसोस कि ये नहीं हुआ, तो 1 अप्रैल को इंडिया ने स्लूइस गेट डाउन कर दिया और पानी रुक गया, और उनकी खड़ी फसल पाकिस्तान की जो गेहूं की थी वो बर्बाद हो गई. तो 4 मई 48 को एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड हुआ जिसको दिल्ली अकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसके हिसाब से ये हुआ कि हम उनको पानी देंगे लेकिन उसके लिए वो पैसा हमको देंगे जब तक कि कोई इसमें ट्रीटी नहीं हो जाती है. तो 50 के दशक में इसके ऊपर काफी काम हुआ. एक थे डेविड लेलेंथॉल जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन US के पहले चेयरमैन थे, बाद में वो कोलियर मैगजीन के लिए कुछ लिखना चाहते थे, और जो उस वक्त बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके चेयरमैन थे यूजीन ब्लैक. तो ये पार्ले चलते रहे, अब उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. बेसिकली 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, और इसके मुताबिक जो ईस्टर्न नदियां थी यानी कि रावी, सतलुज और ब्यास का पानी करीब 33 MAF था, वो इंडिया को दिया गया, और 135 MAF पानी जो कि बाकी 3 नदियों का था, कि इंडस, चिनाब और झेलम का, ये पाकिस्तान को दिया गया.
बहुत ही एस्क्यूट थी, इसके बारे में हम इस बाद में बात करेंगे। जो इसके बाद ये चलता रहा, और ये मजे की बात ये है कि ये इंडिया की क्रेडिट है कि इंडिया चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन हमने 48 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल, हमने इस ट्रीटी को टच नहीं किया। और ये दुनिया के लिए एक मॉडल था, क्योंकि दुनिया में कोई और वाटर ट्रीटी नहीं है। जो उड़ी हुआ 2019 में, जब उड़ी में उन्होंने हरकत की, तो इंडिया ने कहा कि हम आपको, जो ईयरली मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही रेगुलर हुई, कि हम नहीं करते मीटिंग ये आप लोग कुछ काम, क्योंकि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर 2019 में एक स्टेटमेंट दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो लास्ट मीटिंग 2022 में हुई। 2023 में इंडिया ने कहा कि भाई बायलैटरल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें हो गई थी, क्लाइमेट चेंज, डेमोग्राफिक चेंज एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इन तीनों के चलते लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। अभी क्या हुआ, इनका असर क्लाइमेट चेंज वगैरह बाद में हम लोग थोड़ा देखेंगे इसको। सितंबर 2024 में इंडिया ने फॉर्मली बोला कि भाई हम रिव्यू करना चाहते हैं ट्रीटी, लेकिन इसके ऊपर कोई पाकिस्तान से जवाब नहीं आया। मार्च 2025 में जब शाहपुर कांडी का जो डैम था वो तैयार हो गया, तो इंडिया ने रावी में पानी छोड़ना बंद कर दिया, जिससे कि उनको बड़ा नुकसान हुआ लाहौर वगैरह में। और 23 अप्रैल हम सब जानते हैं कि ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, ये आईडब्ल्यूटी के कुछ मेन, बहुत बड़ा वैसे तो इसमें 12 सेक्शंस हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ जो मेन है, मैं क्योंकि समय की कमी है मैं ज्यादा डिस्कशन पे चाहता हूँ। वेस्टर्न रिवर्स जो था उनका करीब इतना 80% पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया, और इंडिया सिर्फ इसमें नॉन कंजम्पटिव यूज और एग्रीकल्चर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते थे, ड्रिंकिंग के लिए कर सकते थे, जो और करीब 3.6 MAF की इंपाउंडिंग कर सकते थे। ईस्टर्न रिवर जो थी इंडिया के, अच्छा इसमें इंडिया ने सिर्फ, बाय द वे मैं यही क्लैरिफाई कर दूं कि 3.6 MAF के अगेंस्ट आज तक लेस देन 1 MAF की इंपाउंडिंग की है। ईस्टर्न रिवर जो 33 MAF था वो पूरा हमारे पास रहा। इसके अलावा जो नाला जो हमने 4 बताए थे माधोपुर के नीचे, उनका 2 MAF पानी भी हमारे लिए था। और ये सरप्राइजिंग है कि इतने सालों तक ये पानी पाकिस्तान में जा रहा था, इसमें सिर्फ 50,000 क्यूसेक्स उनको जाना था, लेकिन ये पानी उनको जा रहा था, उस पानी को वो जैसे आवामी कैनाल जैसी नहर के थ्रू अपने डीसीबी में डाल रहे थे, और हम लोग टैंक खरीद रहे थे उन डीसीबीज को क्रॉस करने के लिए। सो मच फॉर आवर थॉट प्रोसेस। परमानेंट इंडस, इसमें जो था एक प्रोविजन था कि परमानेंट इंडस कमिश्नर होंगे, दोनों के होंगे, और साल में एक बार वो मिलेंगे। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ डेटा, की जो फ्लड का डेटा है ये सब एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। जो भी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, वैलिडेशन ऑफ डिजाइन, जो वेस्टर्न रिवर पे जो भी कुछ बनेगा स्ट्रक्चर जो इंडिया बनाएगा वो 3.6 MAF को रोकने के लिए, उसको पाकिस्तान से हमें वैलिडेट कराना पड़ेगा। इसका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म था, जिसमें सबसे पहले परमानेंट इंडस कमिश्नर, अगर वो ना रिजॉल्व कर पाए तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो ना हो तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो टीटी पूरी तरह पाकिस्तान के फेवर में थी। रीजन क्या थे? एक तो वेस्टर्न मैकेनाइजेशंस क्या थे? यूजीन ब्लैक का आइडिया था कि सब कॉन्टिनेंट को एक साथ ट्रीट किया जाए, जिससे कि हमारा इस पे काबू रहे। वो जो गंगा के ऊपर भी यही चाहते थे, नेपाल और इंडिया के बीच में, कि वो करनाली को भी इन्वॉल्व कर लो और इस सब को कर लो, जिससे कि बांग्लादेश भी बीच में आ जाए, जिससे कि वो डोरियां हिलाते रहे। दूसरा जो उस वक्त जियोपॉलिटिकल थी, आपको याद होगा 1954 में पाकिस्तान जो है वो उन्होंने सिएटो और सेंटो ज्वाइन कर लिया, तो पूरी तरह अमेरिकन के साथ थे, तो अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे थे। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो हम ज्यादा बोल नहीं सके। लेकिन इंडिया के कुछ एडवांटेज थे। पहला एडवांटेज तो यह था कि दोनों जो कंट्रोल करने वाले ईस्टर्न रिवर के हेडवर्क्स हैं, फिरोजपुर और माधोपुर, वो इंडिया में थे। तो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते थे, हुसैनीवाला से या माधोपुर से। दूसरा, एक JNK,
ये मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि ये ट्रीटी जो हुई थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई। कश्मीर वॉज नॉट पार्टी टू इट, एंड जबकि वेस्टर्न नदियां पूरी की पूरी कश्मीर से निकलती हैं, जेएनके से निकलती थी, और ये उज, बसंतर, ये सारे भी जो हैं ये जेएनके में है, क्योंकि माधोपुर बॉर्डर पे है। तो ऑब्वियसली उन्होंने अगर इसको कश्मीर को हिस्सा नहीं बनाया ट्रीटी का, सो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सोचा कि ये इंडिया का हिस्सा है। तो ये पॉइंट हम लोगों को आप हाईलाइट करना चाहिए कि ये जो है ये हमारे साथ है। ये पाकिस्तान को इतने तो मान रखा है डिफेक्टो कि इंडिया का हिस्सा है कश्मीर, तो ऑल दिस यूएन जाना ये सब इसकी कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इन नदियों का जो टोटल कैपेसिटी है करीब 20,000 मेगावाट है। तो अभी अगर ये हम इसको पूरा सिर्फ आप 2002, 2003 में एक कश्मीर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी यूनानिमस पास किया है कि भाई ट्रीटी को आप इसको जेटिसन कर दो। तो अगर हम लोग अब ये ट्रीटी जैसे कर रहे हैं तो ये कश्मीर हमारे साथ और ज्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान ने इस दौरान जो है, जो उनको पैसा मिला उसका मिसयूज खूब किया, लेकिन उन्होंने कुछ बैराज वगैरह बनाए। अच्छा, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें जो फंडिंग की बात आई तो पहले बोला गया कि इंडिया देगी, तो इंडिया ने बोला भाई जी हम क्यों दें। तो ये डिसाइड हुआ कि अंडर राइट वर्ल्ड बैंक करेगी, लेकिन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मतलब दैट मीन्स जो 5 आई कंट्रीज एंड वेस्ट जर्मनी, वो देंगे पैसा, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा यूएस दे रहा था $177 मिलियन के आसपास, 126 डूशमार्क जर्मनी दे रहा था, और बाकी छोटा मोटा यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने भी अच्छा पैसा दिया था। तो इन लोगों ने पैसा दिया। इंडिया ने करीब 62 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड दिया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो जो ये था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो इंडस पे उन्होंने तरबेला, चश्मा 2 बराज बनाए। झेलम पे उन्होंने मंगला बनाया। नीलम झेलम का एचईपी प्रोजेक्ट जो है, जो हम लोग किशन गंगा बोलते हैं वो नीलम बोलते हैं, तो नीलम झेलम का उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, करीब 900 मेगावाट का एक पावर प्लांट। अच्छा, इसमें क्या बात है कि जो उसमें काफी सिल्टिंग हो गई है तो कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, एक उन्होंने लेफ्ट बैंक ओवरफ्लो ड्रेन बनाई, कहाँ पे, सिंध में, जिसके लिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ नदी आ रही थी तो उनको हमसे परमिशन लेनी चाहिए, उनको परमिशन नहीं ली, और जितना सलाइन वाटर था वो हमारे यहाँ फेंक रहे थे। तो ये जिसको कहा जाए, वो जो वेना कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ वैलिड होता है कि ये जो है उन्होंने ब्रीच किया है। अच्छा, उन्होंने कालाबाग में एक डैम प्लान किया, लेकिन उनमें आपस में ही जिसको कहे कंसेंसस नहीं है, क्योंकि पानी भरेगा खैबर पख्तूनख्वा में, और पानी किसका चुराया जाएगा, सिंध का, और पंजाब को फायदा होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध दोनों अप इन आर्म्स, तो कालाबाग अभी तक नहीं बना है। दैमार भाषा का जो बनना शुरू हुआ, क्योंकि चाइनीज बना रहे हैं, ये ऊपर बन रहा है इंडस रिवर के ऊपर, लेकिन इससे गिलगित डूबने का खतरा है। तो इसलिए जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। ब्यास पे पोंग एंड पंडो बनाए, सतलुज पे नाप्ता जाकड़ी का एचईपी बनाया जो बड़ा 1500 ऑलमोस्ट मेगावाट का है। करछम वांगटू एचईपी बनाया, भाखड़ा और नांगल के डैम बनाए। रावी पे थियन डैम, जिसको कि रंजीत सागर भी बोलते हैं, शाहपुर कांडी अब बन गया। चिनाब पे सलाल बनाया, दुलाहस्ती बनाया, और बगलियार एचईपी बनाया, 3। झेलम पे उड़ी 1, 2 और दूसरा लोअर झेलम। किशन गंगा का एचईपी भी तैयार हो गया, और इंडस में भी चूटक और बाजगो निम्मू, जो कि लद्दाख यूटी में है, वो बना दिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में अब जरा थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, क्यों इतना रोज हो रहे हैं वो। पाकिस्तान आज की तारीख में वाटर स्केर्स कंट्री है। उनकी करीब 900 मेगावाट 900 करजाई के टाइम से ये बातचीत शुरू हुई, और उस पर 12 डैम बनाने हैं। उनसे करीब
6 MAF पानी आता है। तो अगर भारतवर्ष ने एक शातू डैम बना भी दिया है, अगर वो 11 डैम बन गए तो वो पानी भी इंडस में कम हो जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान पानी की जो जिसको कहा था बर्बादी, आप समझ लीजिए कि 135 MAF में से जो फार्म हेड पे पहुंचता है सिर्फ 30 MAF पानी, मतलब जिसको कहा जाए कि 1/4 25% पानी सिर्फ पहुंच रहा है। कारण क्या है कि जो इसको बनाने वाले हैं इरसा एंड वापदा, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन लिस्ट पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट ग्रुप में है। स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान की सिर्फ 30 दिन की है। तो मतलब आप सोचो, इसका इम्प्लीकेशन समझ लीजिए, स्टोरेज कैपेसिटी कम होने, अगर हम पानी छोड़ेंगे तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि इसको रोक सके, 92% पानी उनका बर्बाद होता है। फिर रावी में उन्होंने पोल्यूशन कैसे किया है कि रावी में उन्होंने क्या किया कि रावी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे नॉर्थ पंजाब में पेंट फैक्ट्रीज बना दी, जिससे ब्रोमाइड उसमें जाता है तो पानी बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया, तो ग्राउंड वाटर चोरी निकालने लगे। जब ग्राउंड वाटर निकालने लगे तो उसकी डेंसिटी सिर्फ 100 मीटर रह गई, तो ग्राउंड वाटर में जिसकी सॉइल केमिस्ट्री है उसके हिसाब से ये वेस्ट हो गया। वहां पे क्या हो गया कि उसमें आर्सेनिक है। अच्छा, अगले पॉइंट यह है कि जो इंडस से इतना पानी इन्होंने निकाला है कि इंडस की एंड में जो सेल्फ क्लेंसिंग वेलोसिटी थी सी में जाने के लिए वो 0 हो गई, तो उल्टा एस्चुरी अंदर आ रही है, जिसकी वजह से कल 84 किलोमीटर अंदर तक वो पानी सलाइन हो गया। और उसका नुकसान ये है कि उनकी जो फूड, जो राइस बाउल थी शक्कर, उसमें सलाइन वाटर है, तो उनकी फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होने लगी। अच्छा, दूसरा जो इस पे भी उनकी जो नालायकी है वो कम नहीं है, वो पीओजेके के लोगों को, मंगला डैम उन्होंने जो बनाया, जो मैंने बताया वो पीओजेके में एरिया में है, तो उसके लिए जो पैसा देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, वो डिफरेंशियल पेमेंट की पंजाब से कम देते हैं। इस तरह भाषा देमार के लिए भी वो ये कर रहे हैं। तो अप इन आर्म्स लोग हैं कि वो कहते हैं कि तुम हमें अपने बराबर मानते ही नहीं हो। अच्छा, जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स की वजह से इंपाउंडिंग हुई है, लोगों के बहुत से घर चले गए हैं, तो इसकी वजह से जिसको कहा जाए कि एक तो पहले मंगलक से हुआ और अब जो है नीलम झेलम प्रोजेक्ट से हो रहा है। अच्छा, करप्शन का मैंने बोल दिया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, अब लेट्स सी कि अगर इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम डेटा शेयर नहीं करेंगे। आपने कल ही देख लिया, परसों ही, कि मतलब झेलम में पानी बढ़ गया 6 से 7 फीट और 2 फीट करीब घट गया चिनाब में, क्योंकि अब हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि डेटा हम शेयर नहीं उनसे कर रहे हैं। और ये एक और ये अब और ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये मैंने बताया था कि सिल्ट आ जाती है ये रिजर्वायर्स में, तो उनकी क्लेंसिंग के लिए जो उसकी फ्लशिंग होगी तो गेट खोले जाएंगे तो पानी तेजी से बाहर निकले, जैसे इन दिस केस उड़ी से निकला झेलम के केस में। और जब पानी निकल गया तो आप गेट बंद करोगे उसको भरने के लिए। पहले क्या होता था, चाहे ये जो है पूरा का पूरा अगस्त के महीने में होता था, बरसात है तो हो जाता था। अब हम जब चाहें कर सकते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। अब डिजाइन हमें कोई वैलिडेशन नहीं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए हमारे सारे प्रोजेक्ट रुके हुए, रतले, बरसर, पाकल धूल, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रुके हुए हैं। अब वो सारे हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, हमें उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी का कंट्रोल है वो अब हमारे हाथ में, हम जब चाहें जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, कोई पूछने की। लॉन्ग टर्म जो है कि अगर हम इस पानी को और यूज करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए एक वेल डेवलप्ड प्लान होना चाहिए और एक पैसे ही होना चाहिए। इसका नतीजा इसका नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हाँ चलो, वे हेड जो पहले जल्दी से जल्दी हमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करने चाहिए, और उसमें सबसे जरूरी जो है 2 प्रोजेक्ट है। उज के ऊपर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो 6 साल लगेगा, उस पर काम शुरू हुआ लेकिन अभी कहीं पहुंचा नहीं है, क्योंकि JNK और पंजाब में डिस्प्यूट है।
तो वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। दूसरा, जो सेकेंड रावी ब्यास लिंक कैनाल है वो जल्दी से कंप्लीट हो, सिर्फ अभी प्लानिंग स्टेज में है। उसको दोनों को, इनको नेशनल प्रोजेक्ट तो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन जो स्टेट की आपस में जो है वो थोड़ी तेजी से होना चाहिए। और क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट है तो फंडिंग पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, तो ये आराम से हो सकता है। तीसरा, जो वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है उसको, जो जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको हम अगर फाइनलाइज कर देंगे, चाहे लोअर कालनाई हो, म्यार हो, पाकलदुल हो, बरसर हो, रतले हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा, ये जो है बहुत बड़ा हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जो जैसे मैंने बताया पहले कि JNK को हमें अपने इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पूरा का पूरा ये इस जो हम लोगों ने सस्पेंड किए ट्रीटी, इसका फायदा उठाना चाहिए। आई थिंक दैट्स द एंड। नेक्स्ट प्लीज। नाउ एनी पॉइंट्स और एनी डिस्कशन वी कैन, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एनी क्वेश्चंस। We will be taking questions in the next session after talk of Major General Okay. Sudhakar ji, sir, so that a combined set of questions may be asked. Yes, sir. Okay. Sir, आपका बहुत बहुत I finished. यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले आमंत्रित वक्ता मेजर जनरल सुधाकर जी, VSM। इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं, उनका संक्षिप्त बायो नोट पढ़ना चाहूंगा। मेजर जनरल सुधाकर जी, VSM, served in the Mahar Regiment with over 37 years of service in various ranks and appointments, both in command and staff duties in diverse conflict zones within India and overseas. A scholar warrior, the General's academic credentials reflect a pursuit of excellence that began at Sainik School, Bhubaneswar, and culminated at the prestigious National Defence College, New Delhi. His other alma maters read like a roster of India's finest military institutions: the National Defence Academy, Khadakwasla, Indian Military Academy, Dehradun, Defence Service Staff College, Wellington, Juniors and Senior Command Wings, Army War College, Mahu, and College of Defence Management, Secunderabad. His expertise as an instructor class C at IMA Dehradun and later as Deputy Commandant of Army War College, Mahu, where junior, senior and higher commanders are trained in art of warfare and military leadership, help shape the next generation of military leaders. He disarmed, demobilized and rehabilitated the armed rebels, including child warriors with fighting forces in an extremely hostile and volatile conflict zone in 1998-99 as a military observer in the United Nations mission in Sierra Leone at the global level. An India-China expert, he commanded troops in all the three sectors along the India-China border. Qualified in Chinese language, he contributes regularly in national and international multimedia platforms on the subject. He is currently pursuing a PhD on permanent settlement of the border between India and China. Recognized for his expertise in the Indo-Pacific region and maritime security by the Department of States, USA, Consulate General, Kolkata. Welcome you, sir. आपसे अपना वक्तव्य के लिए आग्रह है। धन्यवाद पीयूष। सबसे पहले मैं तहे दिल से IIRF को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे काबिल समझा और आपके इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। और हमारे जो एस्टीम्ड को पैनलिस्ट जनरल चतुर्वेदी साहब है, चाहे उनकी कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। और बधाई हो सर, इट्स एक्सीलेंट नैरेटिव दैट यू हैव पेंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इनफैक्ट मेरे को खुद को ही पता नहीं था काफी चीजें अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि हिंदुस्तान सो क्यों रहा है, इसको हम पहले से क्यों नहीं रद्द किए हैं। कभी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, खून भी गर्म हो रहा है। तो ऐसा माहौल में मैं सभी जितने गेस्ट हैं, जो ऑडियंस है, सबको मैं अपने तरफ से वेलकम करता हूं और आशा यही करता हूं कि मैं जितना उम्मीद किया जा रहा है उसके बराबर, ज्यादा नहीं तो बराबर के लिए कुछ आपके सामने पेश कर पाऊं। देखिए जेंटलमैन, आई ओनली होप देयर आर नो लेडीज। सब्जेक्ट मेरे को 20 मिनट टाइम दिया गया है, मैं 5-7 मिनट कम से कम बोलूंगा। और क्योंकि ये काफी कंटेम्प्रेरी लाइव है और थोड़ा सा ज्यादा टाइम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए से हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। पिछले कोई दिनों से
मेरे से मेरा खुद का पर्सनल व्यू लिया गया है, इंक्लूडिंग सेंट्रल लीडरशिप इन द हायरार्की, नेशनल हायरार्की, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए टाइम टू टाइम। इंटरनेशनल चैनल्स भी मेरे से कुछ मिलिटेंसी और टेररिज्म के बारे में क्या अंतर है इसके बारे में। लेकिन ये सब्जेक्ट आज कुछ कवर करने से पहले मैं सबसे पहले एक किताब दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये किताब मेरे विचार के मुताबिक सभी को पढ़ना चाहिए, शायद कोई नहीं। ये किताब मुझे मिला था एक बुक प्राइज एनडीसी, मेरा थीसिस के एक अच्छा लगा था किसी को, तो ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। हमारे बीच में ए मार्शल बालादित्य साहब, ही इज अ वेरी एविड रीडर एंड आई एम श्योर ही वुड हैव रेड दिस बुक। नरेंद्र सिंह सरेला ये वो नैरेटिव को कहता है जो हम नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ या पार्टीशन हुआ, हम यही जानते हैं मुस्लिम लीग, रेफरेंडम, जिना, टू नेशन थ्योरी, रिलीजन, लैंग्वेज, मोटा मोटा आपको डॉट्स मैंने बता दिया। लेकिन ये किताब वो कहती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा एक साजिश थी। जो साजिश इंडस वाटर ट्रीटी जनरल चतुर्वेदी साहब कवर करते समय काफी मुद्दों पे ये काफी उभर के आ रहा था। क्यों 80%, 20%, ये क्यों स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? सबसे पहला हर हिंदुस्तानी को ये सवाल आना चाहिए मन में, हमने क्या गलती किया था? ऊपर से कल एक हरियाणा से किसी का एक सोशल मीडिया में घूम रहा था, उसको मैं जब खोल के देखा, वो जाट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है 80-20%। इसके अलावा 1,75,000 किलो सोना की जो वैल्यू उस समय, आज के दिन में उसने कैलकुलेट किया है कि 70,000 करोड़ की बराबर या उससे ज्यादा है। इतना पैसा हमने दिया है, जो जनरल चतुर्वेदी साहब अभी कहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ $1 मिलियन हिंदुस्तान ने पेमेंट किया है। आप पानी दो एक्सक्यूड प्रोपोर्शन में, उसके बाद सोने के भाव जो होता है वो भी दे रहे हो आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और हिंदुस्तान, क्या हमने ये राइट ले रखा है कि गोली खाते रहेंगे? हम अपना जो एस्पिरेशन है, अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम कभी कह नहीं सकते हैं? ये एक सवाल आता है। दूसरा, समय को मद्देनजर रखते हुए ये मोटा मैं कहना चाहता हूं, ये किताब वो चीज कहता है कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, इसके पीछे एक थ्यूसिडाइड ट्रैप का केंद्र बिंदु था। थ्यूसिडाइड ट्रैप क्या है? थ्यूसिडाइड ट्रैप वो ट्रैप है जिसको प्रोफेसर, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिका की, प्रोफेसर एलिसन, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट। उनका ये कहना है कि करीब करीब पिछले 500 साल में बहुत सारे लड़ाइयों को एक टेम्पलेट लिया, सैंपल लिया है, 16 सैंपल लेके उन्होंने स्टडी किया है कि जब कोई एस्टैब्लिश्ड पावर को ओवरटेक करने की कोई राइजिंग पावर कोशिश करता है, एस्टैब्लिश्ड पावर साम दाम दंड भेद करके किसी भी हालत में राइजिंग पावर को राइज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। मैं हिंदी में, मेरा हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक स्पिरिट ऑफ माय स्टेटमेंट इज नो एस्टैब्लिश्ड पावर विल एवर अलाउ अ राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स फुटिंग। That is the translation. Now, why am I saying this? Out of 16 samples they picked up, they found 12 such cases. They led to very serious conflicts in the war. ये जो theory है, it came into prominence in 2015. क्यों? इसलिए जैसा ही चाइना का मॉडर्नाइजेशन प्लान की अनाउंसमेंट हुई, वैसा ही ये थ्यूसिडाइड ट्रैप पूरा एकदम विश्व में फैल गया, विकिपीडिया पर कवर कर दिया। तो क्योंकि तब से ये बात करने लगे, ये जो थ्यूसिडाइड ट्रैप है, ये इट विल अल्टीमेटली लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, दैट इज फॉर एनीबॉडीज गेस। दूसरी किताब मैं ये दिखाना चाहता हूं, एक ये है किताब, समय को मद्देनजर रखते हुए, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, ये डैनियल मार्के, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। ये किताब वो कहता है कि चाहे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, कितने भी टॉर्मेंटिंग हो, चाहे अमेरिका कितने भी परेशान हो जाए,
फिर भी मजबूरन ये पाकिस्तान को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता है। ये मेरा बैकड्रॉप में ये दो किताब की मैं प्रियम्बल देते हुए आप सबको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत हम 1947-48 की लड़ाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम 65 के बारे में भी नहीं करेंगे, बट 71 लड़ाई में जो टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, इसके बारे में ब्रीफली 2-3 लाइन में कहना चाहता हूं। वो ये है कि सीज फायर लाइन converted into line of control. Ceasefire line converted into line of control, bilateral relationship, or return of 93 prisoners of war on a platter. As if the blood that we dedicate to the motherland for the national security is such a free product. It doesn't have any price. I'm not talking about Hindu and Muslim. I'm talking about the national pride. Are we so cheap that we keep sacrificing? इंडस का पानी भी सैक्रिफाइस किए, पैसा भी दे रहे हैं उनका डैम बनाने के लिए, ऊपर से आप अपना ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में लड़ाई चल रही है, दिल्ली पानी नहीं है, and bring politics into an issue which is actually a big challenge for the livelihood of people. Is this what is called as a rising democracy in the world? It's a question which is coming to my mind. I don't have any answer as a student of geopolitics, security and strategy. Next, I wish to share with you is something very, very important, which will actually bring me hopefully to an end so that we throw open the floor to questions. It is 2024, gentlemen. मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज ये पाकिस्तान में है, इसका एक है, देयर इज अ दिस थिंग इन वॉशिंगटन एंड काफी सारे जगह हैं उसके। तो उनका ये कहना था कि 2024 is the deadliest year in the history of Pakistan for security forces. Deadliest year for security forces and the country in terms of terrorist attack. क्या था 2024 में? 24 में ये था कि a total of 1166 incidents of terrorist attacks and counter-terrorist operations resulted in more than 2,546 fatalities, 2,267 injuries, 685 military personnel were killed. Soon after the declaration or announcement of this particular statistics of the data, उनका जो DGISPR है पाकिस्तान का, वो आप भाग के आके मीडिया में जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो गलत बोल दिया उसने, 383 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स डाइड, 925 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है, 60,000 इंट बेस्ड ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान में। सो इसके साथ आप देखिए दो चीज और मैं कहना चाहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो फेटेलिटीज है इसका ज्यादातर कितना है, 94%, एंड जितना जो इंसिडेंट्स मैंने बताया 1166, ये 2024 की बात कर रहा हूं, 89% ऑफ इंसिडेंट्स दे हैपेंड इन खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। और एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए बुर्किना फासो जो अफ्रीका गए हैं, घूमे हैं, मैं खुद गया हूं उस इलाके में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेरालियोन में था, काफी चक्कर मारा हूं, उसका परिस्थिति, हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान इज द वर्स्ट अफेक्टेड इन टेररिज्म, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू प्ले इट डाउन, लाइक कल जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक चैनल मेरे से डेफिनेशन पूछ रहे थे, मीनिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिटेंट एंड टेररिज्म, because all the Western press, they have started playing down the carnage of Pahalgam. They are saying these are gunmen, these are militants. Some people are saying these are there is a gang warfare going on. You take New York Times, you take The Guardian, you talk about Al Jazeera, you talk about BBC has already been served a letter by the Minister of External Affairs of India. So please stop making propaganda about an incident where the soul of India as a nation has been deeply hurt. Okay, so that means we have to be hurt to rebound with a feeling of nationalism. We can't do it without that. Are we waiting for that? Is it that? This is what is coming to my mind.
And most important thing, gentlemen, is in 2024, there was a surge of violent activities. I'm not taking any example of 2025, leave alone that Jafar Express and all that, that something happened in Nokshi, 90-odd people died, media did not report, and many other such incidents which have taken place. 45% rise in violent activities in Pakistan in 2024, gentlemen. Now, before we throw it open, I just want to, there is a friend of mine, he settled in US. हम UN मिशन सिरालियोन में थे साथ में. इन्होंने एक मेरे पास क्लिप भेजा है. वो क्लिप में देयर इज अ एमिनेंट पाकिस्तानी, पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है, और वो हर साल कोई एक स्टडी सेंटर में जाके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक टॉक देते हैं. उनका एक टॉक 2017 को हुआ था, जब पाकिस्तान का जो जन्म है ये करीब आई थिंक 70 ऑड इयर्स जब हो रहा था. वही साहब को उन्होंने दोबारा बुलाया इन स्पैन ऑफ पिछले 10 साल के अंदर. ऑल्दो ही इज सपोज्ड टू गो एवरी ईयर, आई थिंक ही स्किप्ड कपल ऑफ देम. ये यूक्रेन और इसका जो लड़ाई चल रही है, ये तीसरी साल जब खत्म हो रहा था, तो उसी के साथ उन्होंने उसको कोइंसाइड करके बुलाए थे. उनका ये कहना है, ये मेरा नहीं है, उनका कहना है, पाकिस्तान had missed 2 windows of opportunities. What are these 2 windows of opportunities? तो उनके भाषा में पहला विंडो है इकोनॉमी. मतलब क्या है? उनकी भाषा में वो कहना चाहते हैं पाकिस्तान का नाम बदल के ये नाम रखना सही होगा कि अ कंट्री विथ बंच ऑफ फिगर्स. बजट पास होता है, कुछ फिगर होते हैं, कोई रेवेन्यू उसका इनकम नहीं हो रहा है. पुराने जो लोन है उनको क्लियर करने के लिए नए लोन लिया जा रहा है. यूएसए 25th बेल आउट पैकेज ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है. $7 बिलियन सितंबर 2024 को सैंक्शन किया है यूएस ने. यह हालत है. दूसरा, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ये सारे उदाहरण देके वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ऐसा एक गोल्डन क्रिसेंट पे आ गया है. ये बहुत ही ये बेखूबी एक गोल्डन क्रिसेंट है. ये ड्रग के गोल्डन क्रिसेंट नहीं है, ये है नॉन स्टेट एक्टर्स. ये इसके आगे मैं अपना ही व्याख्या देना चाहता हूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो डायरेक्शन अलग ले लिया है. मैं कहना चाहता हूं, जो अंतरराष्ट्रीय चैनल में कल की बात है, न्यूज एक्स वर्ल्ड जिन्होंने इन्वाइट किया था, ये कहना चाहता हूं मैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये गोल्डन क्रिसेंट सिर्फ ड्रग्स का नहीं है. ये वो गोल्डन क्रिसेंट है जहां पे पूरा विश्व में नॉन स्टेट एक्टर्स को धीरे धीरे लेजिटिमाइज किया जा रहा है. नॉन स्टेट एक्टर एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ईरान की बात करिए, 4H, हम 3 से काफी एक्वेंटेड हैं. आप हुतीस की बात करिए, हमास की बात करिए, हिजबुल्लाह की बात करिए, उसके बाद चौथा एक H में भूल रहा हूं, कुछ नाम है. चारों टेंटिकल्स ऑफ द ऑक्टोपस. ऑक्टोपस का हेड कौन सा है? ईरान है. नेक्स्ट आपका आता है पाकिस्तान. ये जो नॉन स्टेट एक्टर जो उन्होंने शुरू किया है, वे बैक इन 1965 जुल्फिकर अली भुट्टो जब वो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच के दौरान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विल ब्लीड इंडिया, जस्ट अ पासिंग रिमार्क, विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स. इसी स्टेटमेंट को धीरे धीरे रिफाइन करते करते जियाल हक जो है 1979 में उनका ऑलमोस्ट और डॉक्ट्रिन पास हुआ, कम वॉट में विल ब्लीड इंडिया, क्योंकि तब तक बांग्लादेश लिबरेट हो गया था. तुमको तब तक ये एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान को कन्वेंशनल मीन से कभी वो हरा नहीं सकते हैं, तो प्रॉक्सी वॉर के जरिए से वो हराना चाहते थे. आज जो हम ये जो हमारा जो पहलगाम वाला जो कार्नेज है, वो उसी का एक अटूट अंग है. ये प्रॉक्सी वॉर, मैं ऋषि को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने ही मेरे को रिसर्च करवाया. मेरा रिसर्च कहता है ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के तरफ से कभी समाप्त नहीं होगा. नंबर 2, प्रॉक्सी वॉर के ऊपर कोई काबू नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, ना पॉलिटिशियन ना मिलिट्री. बस एक ही चीज का बेखूबी, एक उनका बुनियादी एक लिंकेज है, जब चाहिए जब बोलते हैं जाओ उधर बॉम्ब ब्लास्ट करके आओ, जाओ उधर उनको मार के आओ. ये दिस इज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इट विल कंटिन्यू फॉरएवर, इटर्नली.
This is my finding. I may be wrong, but I am very confident about my research and the finding. Gentlemen, with that, I just want to leave a word of this thing. When you talk about the second window which is missed, is the security. पाकिस्तान विद इन द स्टेट इटसेल्फ, आप अगर ध्यान देंगे, इमरान खान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने CNN की इंटरव्यू में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार कहा है कि मैं क्या करूं, मेरे को तो 50 टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं दिल्ली। 50 इज नॉट एन एग्जैजरेशन। आज के दिन में 104 रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और 104 में से अगर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज का आप अगर देंगे, उसका ईयरली डाटा निकलता है, तो उसमें अगर देखेंगे 12 हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, आउट ऑफ विच 5 आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया। आई हैव फिनिश्ड, नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीथिंग यू विश टू आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही कम समय में बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही उपयुक्त जानकारी आपने प्रदान करी। साथ ही मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर ने भी बहुत स्पष्ट रूप से इंडस वाटर ट्रीटी को समझाया कि उसको सस्पेंड करने से या उसको कुछ समय के लिए निलंबित करने से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका जो इतिहास भी आपने बताया, और भारत को उस ट्रीटी को सस्पेंड करने की आवश्यकता भी है। और मेजर जनरल सुधाकर सर ने तो बताया कि इन पुस्तकों के माध्यम से और जो आपने रिसर्च करी है वो स्पष्ट रूप से कि 104 ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट और 9 आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया। तो साथियों जो सुन रहे हैं इस विषय को, मैंने आप सभी को वीडियो और माइक ऑन कर दिया है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने प्रश्न दोनों वक्ताओं से पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी रख सकते हैं अपना विषय, और सीधे अपना वीडियो और माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऋषि सर आप प्रारंभ कर सकते हैं धीरे धीरे हमारे। और पहले तो आप चैट बॉक्स में देखिएगा, क्रिकेटर संदीप के प्रश्न है और अपने ग्रुप कैप्टन मेहता के प्रश्न है। पहले वो अपना वीडियो ऑन करके प्रश्न करें। हाँ हाँ चैट बॉक्स अब क्योंकि मैंने सबको सीधे ऑन कर दिया है, तो ऑडियंस में से कोई भी सीधे बात कर सकता है, कोई विषय नहीं है। प्रेसिडेंट सर प्लीज कम ऑनलाइन एंड रेज योर, थैंक यू सर। अच्छा, ये चैट बॉक्स है। I think the questions first should be taken on by Piyush. Kindly go ahead. यस सर, मेरा पहला सवाल तो मेजर जनरल चतुर्वेदी सर से है कि अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि फॉरेन नेशंस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है डैम्स बनाने को, और ये भी जानकारी आती है कि वर्ल्ड बैंक ने काफी लोन दिया है इन चीजों को लेकर, तो क्या एक तरफा सस्पेंड करने से हम विश्व के माहौल को निपट सकते हैं, क्योंकि अगर फंडिंग बाहर से आ रही है तो? सर म्यूट है सर, अनम्यूट करेंगे सर। अगर आप गौर करें, मैंने जो उसमें जो वियना कन्वेंशन का 60 और 62 दो बताए थे, उसका बताने का उद्देश्य यही था कि आप जो इसको हम लोग जो एब्रोगेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं इसीलिए ट्रीटी को, क्योंकि अभी तक जो था, जबकि ये ट्रीटी बनी थी तब हमारे पास हम लोग बहुत इकोनॉमिकली वीक थे। 1960 के तक आते आते आपको याद होगा कि 65 की लड़ाई के बाद भी डिवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ी थी। उसके पहले हमारे पास खाने के लाले थे कि हम लोगों को PL 480 में गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था, फूड ग्रेन्स फ्रॉम अमेरिका। तो उस स्थिति में हम लोगों की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। आज हमको ना तो वर्ल्ड बैंक की कोई खास जरूरत है, उल्टा वर्ल्ड बैंक को हमारी जरूरत है। उस पे देखिए, इसमें जो शेयर्स है वो हमारा भी शेयर है, और जो दुनिया चेंज हो रही है, तो उसके चलते मेरा अपना मानना ये है कि जो भी हम लोग, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए हमको वर्ल्ड बैंक से फंडिंग बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी इंटरनल फंडिंग से हम इनको कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वहां पे जब तक वापदा और इरसा रहेंगे, जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन उनको मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए, तब तक
खुदा ही उनका मालिक है, क्योंकि वो जो बनाते हैं उसमें से क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसकी सिल्टिंग डीसिल्टिंग वो कर नहीं रहे। तो तरबेला जो है उसमें ऊपर तक करीब 90% उसमें सिल्ट आ चुकी है, तो उसको सिल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। उसी तरह मंगला में उन्होंने हाइट रेज कर दी, और हाइट रेज करने से क्या बहुत सारे गांव डूब गए। तो पीओके वाले जो हैं उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं, पीओके वाले जो हैं बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए। इस सब के चलते एक चीज जो बहुत गौर करने वाली बात यह है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जो पीओके, क्योंकि आपको याद होगा कि जो उसने नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनाया उस कि इस तरीके से उन्होंने जिसमें कि वो ले जाना चाहते थे। तो वहां पे एक नारा आजकल चल रहा है कि भाई आप तो हमको प्यासा मार रहे हो, और जो हमारे यहाँ से आप बिजली पैदा कर रहे हो, और हमको जो है मतलब रुपए में अगर 1 रुपया पंजाब को देते हो तो हमको तो सिर्फ आप 10 आने दे रहे हो। इस तरह की हालत है। तो मेरा अपना मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक दे न दे। और वर्ल्ड एक सवाल ये भी आता है कि वर्ल्ड बैंक ने अंडरटेकिंग ली थी तो हमें उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। 62 और 60 के चलते वियना कन्वेंशन के किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद करो हम लोगों ने 2019 से कोशिश शुरू कर दी थी, 2023 में हमने उनको लिखा, 2024 में हम रिव्यू के लिए फिर बोला, हालांकि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो हमने, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ये आई है कि जो उन्होंने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की हैं पहलगाम में, तो इसके चलते कोई इनकम्बरेंस नहीं है हमारे ऊपर कि हम इसको रोक सके। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, वो अगर आईसीजे में जाने की बात करते हैं वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये बायलैटरल ट्रीटी थी, ये यूएन की ट्रीटी नहीं है जिसके लिए कि वो यूएन के उसमें जाएंगे। तो ये बायलैटरल ट्रीटी थी, तो बायलैटरल ट्रीटी इसमें कोई प्रोविजन बंद करने का नहीं है लेकिन सस्पेंशन का है वो वियना कन्वेंशन से। तो इस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं। देवी प्रसाद जी हमसे जुड़े हुए पूछ रहे हैं कि अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है और इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग को अवरुद्ध करता है तो क्या स्थिति होगी, क्या ऐसी संभावनाएं भी हैं? अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज तो जो वो बना रहे हैं उस पर 5 डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना, और जिसमें से जो सबसे बड़ा जो है वो एक जगह है जो भारतवर्ष की जो मैकमोहन लाइन से करीब 30 किलोमीटर नॉर्थ में है, वो मेडॉक काउंटी में। अच्छा, 2 चीजें इसमें गौर करने वाली, वो 60 गीगावाट का बन रहा है, वो कह रहे हैं कि एचईपी है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, लेकिन पानी तो रोकेंगे वो। तो उसमें जो ये बनेगा, पहली चीज तो ये जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो यारलुंग शांगपो जो कि तिब्बत में है सिर्फ 15% है, बाकी 85% पानी उसमें तब आके जुड़ता है जब ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। पहले ये सियांग बनती है, फिर उसमें दिबांग मिलती है, उसमें फिर बाकी नदियां जो जिया बरोली लोहित मिलती है, तब जाके ये बनती है जो ब्रह्मपुत्र। तो असली पानी जो है यहाँ से आता है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने ऑलरेडी एक एक्शन लेना शुरू किया। सुबानसिरी, अपर सुबानसिरी, लोअर सुबानसिरी में हम 2 डैम बना रहे हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी करीब 15 गीगावाट होगी। तो मतलब अच्छा, तीसरा जो ये ब्रह्मपुत्र पे बना रहे हैं अभी बन रहा है, आप मान लीजिए कि चाइना बहुत तेज है, बहुत जल्दी बना लेगा, 1 साल उनको लगेगा। और चौथी चीज, तो 1 साल तक कुछ नहीं कर सकते। चौथी चीज, जो आज की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या चाइना कि पाकिस्तान ने बोला इनका पानी रोक दो तो वो रोक देंगे? क्योंकि चाइना को भी आज आप अगर गौर कीजिए, जो रिसेंट एक्टिविटी है जो कि ये टैरिफ के चलते हुई हैं, जिसके चलते हुए चाइना जो है वो भी सहमा हुआ है, 245% टैरिफ की बात कर रहा है अमेरिका। तो उसको भी वो आइसोलेशन जो हो रहा है, तो वो इंडिया से वो दोस्ती बनाना चाहता है। दोस्ती बनाना किस लिए चाहेगा? क्योंकि आपको अगर गौर करो कि अभी हाल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया कि पिछले 2020 से चल रहा था, तो डेप्संग और डेमचौक से वो खाली नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली वो बात मान गया हमारी। तो अभी जो है, जो पिछली लड़ाइयों में भी हमने देखा है कि चाइना हवाबाजी खूब करता है, लेकिन ना तो 71 में ना 65 में उसने पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया है, क्योंकि वो जो है ये आपको बोलता रहेगा कि हम दोनों को आपस में मिलकर बात करके सुलझाना चाहिए,
लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो पानी रोकेगा, क्योंकि वो पानी रोकेगा अगर पानी उसने छोड़ा तो उसका जो नॉर्थ का जो ये बना रहा है, जहां से वो बिजली बना रहा है, ये मेडॉग वाला, ये पानी वो ले जाना चाहता है अपने नॉर्थ में। चाइना में भी पानी की बहुत, जिसको कहते हैं एस्क्यूड है, साउथ में पानी है, नॉर्थ में पानी नहीं है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से वहां नुकसान हो रहा है। तीसरा, जो चाइना में जो सबसे बड़ी चीज, आज की तारीख में 600 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं, जहां के शहर हैं जहां की पानी पोल्यूटेड है। 33 मिलियन एनवायरमेंटल रिफ्यूजी आज चाइना में है। तो चाइना से ये कहना, ये लोगों का कहना कि ये हो जाएगा, मुझे उम्मीद कम है। जी सर, एक क्वेश्चन हमारे IRF प्रेसिडेंट सर संदीप सर ने पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर लेस देन 100 MF only to reach Pakistan? How much time will be required to ensure less than 100 MF to reach Pakistan? देखिए, ऐसा है कि जहां तक ईस्टर्न रिवर है, इसमें करीब जो हमारी जो तीनों नदियों का पानी नॉर्मली जाता था, सतलुज, ब्यास, रावी का, वो तो बंद हो गया। असली जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो आ रही है वो उस 2 MF की, जो कि डाउनस्ट्रीम ऑफ माधोपुर जाता था। वो भी, उसमें शाहपुर कांडी बन जाने से करीब 0.6 MF वो भी बंद हो गया। तो अब उनके से 1 MF के आसपास पानी उनके यहाँ भी जा रहा है। वो जब ये हमारे उच्च मल्टीपर्पज और ये बंद हो जाएगा, क्या दूसरा रावी ब्यास लिंक 2, तो वो भी बंद हो जाएगा। ये तो ईस्टर्न रिवर की कहानी हो गई। 135 MF जो जा रहा है, उसमें से 3.6 MF जो है वो हम लेंगे। उसके बाद जो बाकी, जैसे कि संदीप जी ने पूछा है कि बाकी जो 135 में से 3.6 किया, तो करीब 132 MF अभी भी जाएगा उनके यहाँ। तो पहली चीज तो पाकिस्तान हमारा काम कर रहा है ना, उन्होंने कोई स्टोरेज स्पेस बनाया है, और फार्म हेड पे जाके सिर्फ 30 MF पहुंच रहा है उनके यहाँ पानी। तो 30 MF, 135 में से 30 MF जा रहा है, और बाकी बहुत सारा पानी उनका जो है, जो सालाना जो है वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 30 दिन की उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो पाकिस्तान में जो हमारे 2 दोस्त हैं, वाबदा और इरसा, वो हमारा काम कर रहे हैं। नंबर 2, इसको घटाने के लिए अगर हम इसको 100 MF पे लाना चाहते हैं, मतलब करीब 33 MF और उनका हम चोरी करें, उनको ना दें, इसके लिए कम से कम भी लगेगा 1 डिकेड। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपका जो आज, अगर आप पूरा पानी रोक दो, ये कहो कि हम वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोक देते हैं, तो वैली जो है वो 7 मीटर पानी की डेप्थ में होगी। क्या आप चाहोगे? नहीं चाहोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा आज की तारीख में जो, इसीलिए मैंने बताया, कंट्रोल ऑफ वाटर हमारे हाथ में आ गया है कि हम जब स्लूइस गेट बंद करेंगे, पानी रोक दिया, जब स्लूइस गेट आया तो पानी ज्यादा छोड़ दिया। बाकी जो है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। पहली चीज, ये पानी हम लेके कहाँ जाएंगे, कौन से एरिया में जाएंगे, उसके लिए कितना, क्या JNK तैयार होगा। पंजाब से जाएगा तो उसके रेवेन्यू की उसकी जरूरत पड़ेगी, हिमाचल के थ्रू जाएगा तो उनको रेवेन्यू देने की। तो ये एक इंटर स्टेट एक कोर्ट, हम लोगों को एक, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, एक अथॉरिटी बननी चाहिए, रिवर अथॉरिटी। और ये जो है पानी को मैनेजमेंट के लिए रिवर अथॉरिटी, CWC के मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। एक नई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने, जहाँ की इसका एक बहुत ही डिटेल प्लान बने कि इस पानी को कहाँ ले जाना है, राजस्थान ले जाना है, बिहार ले जाना है, उत्तर प्रदेश ले जाना है, कहाँ ले जाना है, मध्य प्रदेश ले जाना है। तो इसको हम लोगों को इसको प्लान करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा समय लगेगा। कम से कम जो संदीप का प्रश्न है, 1 डिकेड तो लगेगा। मेजर जनरल सुधाकर सर, आपने भी हाथ रेज किया है, आप भी पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, अगर आपकी इजाजत है तो मैं कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि यही सवाल मेरे से भी पूछा गया था बाय some people. I am not supposed to disclose the name in the decision making apex organization. मैंने एक सुझाव दिया था। मैं एक फार्मर फैमिली का हूं, जो खेत जानते हैं, खेती में जाके पानी कैसे चढ़ाते हैं खेती में, जो ये कार्रवाई जो किया है उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पानी, इंडस वाटर सिस्टम का पानी पाकिस्तान का 80% से ज्यादा आपको ओपन सोर्स से मिलेगा। मेरा रिसर्च कहता है ये 90% के जो
एग्रेरियन सोसाइटी नेटवर्क है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पानी का जब तक आपका प्रेडिक्टेबल डाटा और इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उनका एक सिस्टम होता है। मेरा खेत है, मैं खेत में इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक को नाली खुला जाता है पानी आने के लिए। आप अगर ये जो एमएएफ का जो स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि हिंदुस्तान को कम से कम 15 साल लग जाएगा, फुल स्टोरेज कैपेसिटी 10 से 15 साल, इससे पहले नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पानी का जो रिलीज है उसको ऐसा अनप्रेडिक्टेबल बनाइए ताकि वो खुद घुटने पे आ जाए। वही वही यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नाउ वंस यू कंट्रोल वाटर देन यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट। ओके फाइन। कल जो किया है कि झेलम में पानी बढ़ा दिया और चिनाब में घटा दिया, तो उनको बहुत सा खड़ी फसल डूब गई, उनकी जो फ्लड रिलीफ की तैयारी हो गई, कुछ उनके जो टैंक्स वो बॉर्डर पे जो ला रहे थे वो पानी में फंस गए। तो ये Fine. सारा then if you have already covered, sir, then I take my words back. But I thought I could contribute to make some meaningful value addition. Second point that came to my mind was कि डाटा अभी हाइड्रोग्राफी डाटा जो पहले हम देते थे वो डाटा अभी नहीं देंगे। That is much more. It is a master stroke as far as India is concerned. Same thing if we equate, मेरा limited study और research के मुताबिक Brahmaputra, when it flows to India, the catchment area of Brahmaputra provide almost about 60% of the water. We are not dependent on Tibet water, like the general has said. 15% of that is coming from Tibetan catchment area. So en route 60% के करीब करीब पानी आ रहा है. This template could be used in a very, very calibrated manner against the Bangladesh. This is the only point that I had to share with you. That's all. And data, I have already said that by not giving data, you have already created a state of uncertainty in the mind of Pakistan. राजशेखर सर के क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है मेजर जनरल सुधाकर जी से कि जिस प्रकार पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और जो कश्मीर के लिए ओपन अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, जो भी उनके लिए कश्मीर इश्यूज डायरेक्टली रहता है, पाकिस्तान पूरा कंट्री करता है, ऐसे भारत बलूचिस्तान के लिए ऐसा विषय क्यों नहीं डायरेक्टली करता है? देखिए बहुत अच्छा राज, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक एवरी इंडियन शुड आस्क दिस क्वेश्चन. आई हैव ओपनली स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट इट्स अबाउट टाइम that Balochistan should also be put on the escalatory matrix of a response against any such kind of terrorist attack or otherwise if Pakistan doesn't behave. Now, what better than the Prime Minister of India making a statement from the Red Fort on Independence Day speech? 2016, yes, correct. Yes. Do you have anybody from India who ever could dare give a statement like this in favor of Balochistan, in favor of Gilgit-Baltistan? He's the first Prime Minister, first Indian leader who's given a statement. If he has given a statement, और क्या support करने की जरूरत है? But that doesn't mean, Raj, that doesn't mean India as a national policy is supporting the Balochistan liberation movement. It is to be used and articulated in this open manner, candid manner when the time comes. I don't think, as per my study and research, we are in any way supporting Balochistan. But I strongly recommend to the government of India that Balochistan must be openly, not covertly. Overtly, it should be supported from material, moral, and all causes. Absolutely. I personally feel, I'm totally with you. You have also asked a second question, I think. I don't know. Okay, गायब हो गया वो. नीचे. नहीं इसमें नहीं है. सेकंड क्वेश्चन ये था कि पिछले 40 सालों में पर्यटकों पर आक्रमण नहीं किया गया था इस प्रकार से, क्योंकि उनकी रोजगार भी था. तो इस प्रकार से काफी समय बाद ये घटना देखने को मिली है. राज सर पूछना चाहते हैं. आपका टूरिस्ट what can be the motive? What motivated them to change the track? Excellent. Just keep the Thucydide trap in the back of your mind. Although it has got no relevant linkages here, but keep it in the back of your mind. India का जो growth story है, आपको 60 साल लगा, 60 years to become a $1 trillion economy in 2007. Okay. In 7 years, from 2007 to 2014, आप 7 साल में $2 trillion economy बन गए.
2019 को आपका करीब करीब 3 ट्रिलियन बन गया था 5 साल के अंदर. बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक नाउ यू आर स्लगिश मूवमेंट हो रहा, नहीं तो 8 पॉइंट समथिंग होना था, आप आज के दिन में 4 ट्रिलियन के करीब करीब है. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो ग्रोथ स्टोरी, द गोल्डन स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, it has picked up momentum in past 10 to 12 years as per my understanding. लोग कहते हैं हिंदुस्तान जो प्रोग्रेसिवली ग्रोथ हुआ है 2007 to 2013 तक हुआ है. Yes, I do not deny that. It is because of this sustained economic growth, the Lehman crisis which took place in 2008. It did not have any serious impact against India. But all that aside, keep this as the background peripheral issues. Your Jammu and Kashmir posted a historical record of 2.1 crores of tourists in the year 2023. Okay? And 2024, if it is not more, it was not less either. You go to J&K, I'm told you've just come back from J&K, or one of you have been to J&K. J&K is like any other European city today. This growth story, vis-a-vis the clamor and the anguish and the painful cries from across, from Jammu and Kashmir and Pakistan, plus the 2024 deadliest year of terrorist attacks in Pakistan, army having been marginalized, there is one single question in the minds of everyone in Pakistan. Is Pakistan heading towards implosion? My answer is no. It should not. If Pakistan implodes, India has to take, the spillage is going to spill over towards our side. It will be very difficult for us to control, no matter how hard you try. It is something like Bangladesh story is going to be replicated with a greater intensity, whether you accept it or not. Illegal migrants will keep coming. You will keep having people flooding from same Punjab, which is trying to create a Khalistan. But all I am saying is the disunity factor in Pakistan and marginalization of the Pakistan army, which is not considered. They are worshipped. They're like demigods. Pakistan army, there is a colloquial saying, every country has an army, but Pakistan army has a country. You're understanding the meaning behind this? So if you have understood, the army's image has been downsized, it has been marginalized, and there is a whole lot of activity signature which is painting the matrix, which is showing very serious fault lines which are indicative of Pakistan breaking up. In order to hold the unit or hold the country together, they have to do something extraordinary, which will bring the people together. Do you know, there is a Pew statistical study. Just a minute, I think I got the data. Almost more than 70 to 75% of Pakistan people today, they are not in favor of what the chief of the army staff is saying. तो भाड़ में जा, तेरे को टू नेशन थ्योरी जाके तो डूब के मार. हमें नहीं चाहिए टू नेशन थ्योरी. हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए. पानी जहां पे पानी आप कौन सा डैम है, नीलम डैम और सम प्लेस, वो पानी वहां पे it is being bought for 70 paisa, that is per unit of electricity, and it is being sold how much? Earlier it used to be 2 rupees 70 paisa. I believe it has gone up to 9 rupees per unit, or it could be much more than what I am saying. I don't have the facts and figures rightly here, but the cost of electricity per unit at the time of production, maybe General Chaturvedi would have this fact, is as against the purchase price, it is being sold at multiple times to the public, right? And I have already painted the situation about the economy, the constitutional crisis, the judiciary has fallen apart, nobody is listening to anybody, army chief is hiding in a bunker. Under these circumstances, to hold the country together, this is my assessment, I may be wrong, Raj, but after having kept in touch and up to date with lots of things happening in Pakistan, being a student, so I personally feel it is simply to orchestrate such an activity in India, because this is the bread and butter based on which the genesis of Pakistan is based.
There is no better justification than killing the innocent, unarmed civilians, and that to tourists, so as to tell none other than our leader, our political leader. तो 56 इंच का छाती चौड़ा करके कर रहे हो ना जम्मू एंड कश्मीर, तो बता रहे हो कि देखो क्या डेवलपमेंट हो रहा है. Will retard your economic development. No foreign FDI will come in. You have abrogated. The turning point of India and Pakistan has been the abrogation of Article 370. It is a super master stroke to China and Pakistan, which has not gone down too well. Therefore, there is a revival of proxy war. Therefore, there is a reset of ties with the Bangladesh. Therefore, there is money is flooding in from United Front Works Department of China. United Front Works Department, they have got 3 primary aims. अभी टाइम नहीं है, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा. 3 primary aims, and all the 3 primary aims, they have penetrated into an ecosystem of India as a nation state, whether it is judiciary, or it is your media, or it is your political legislators. They have managed to penetrate. They're subverting the minds. That's why you have, I'll not take the names, very eminent political leadership. They're talking all trash. When it comes to national security, there is no question of any counter argument. National security must have a bipartisan decision by the ruling dispensation, and everyone is expected to follow the call. There is no question of any dispute. Pahalgam carnage is a Pahalgam carnage. Hindustan must get together, unite together, fight it out, and make sure that the Pakistan ceases to exist on the map of earth. When I say ceases to exist, in form of entity and as a name. It can exist as Hindustan, it can exist as Balochistan, it can exist as Khyber Pakhtunkhwa or Punjab, but is that going to be a better solution? That I don't know. It is anybody's guess, and you could actually apply yourself whether it will give us a better solution or a worse solution. That is for all of us to guess. I hope not, if not 100%, some percent of I have been able to answer to your question. No, it will definitely eliminate the ground support base for the insurgency, because I am sure the Kashmiri people will not like it, because now no Indian will ever dare to go there as tourist for some time. Raj, I think General Chaturvedi wants to make a point. Sir, please. Inputs on 2 points. One is Balochistan. Balochistan, we can't go over for the simple reason that there is a province north of Balochistan, northwest of Balochistan, called Sistan Balochistan in Iran. Iran, correct. If today something happens, Balochistan becomes independent, tomorrow there will be a reason that it may become Iran also may get affected. India cannot displease Iran at this point in time, because INSTC from Chabahar, Zaidan, Zaranj, Delaram on to Russia, that is very important for us. So India will go only covert in Balochistan. Second point is about this Pahalgam issue. My own sense is that Kashmiris are provided only logistic support. Main thing has been done by Pakistan, because Pakistan has no love lost for tourism in J&K, whereas for J&K it is rosy roti. So therefore, and as reports came that people were speaking Pashto. So therefore, these are the fellows who had come from across, and it's an ISI operation where logistic support has been provided by some and for money, which can be done by anyone. So therefore, it is basically to hit the economy of Kashmir, and that is Omar Abdullah, Farooq Abdullah, and the entire, even so much so, Mehbooba Mufti is also speaking against this carnage. So my own sense is that using Indus Water Treaty, using other instrument where we can integrate Kashmir better with us, in this calamity, there is a great opportunity which has emerged. Excuse me. A very Next bullish question. move, I would say. Next question, please. Sir, There is one caution from Armenia coming. One scholar from Armenia, Chalikyan, has raised a caution, and that is in English. Can you please comment on the implications of this on India-Turkey relations, considering Turkey has been backing Pakistan for ages? Please answer in English from Armenia. Is it question is to me?
Anyone can respond. Okay, I'll respond, and I'll respond with an example. Right, sir. Yesterday, a Turkey aircraft had landed in Pakistan, and today Turkey has clarified that it was basically for refueling. Initially, it was thought that they are coming for some kind of providing some arms, ammunition, and all those things which Pakistan needs. There is no doubt that Turkey has been a supporter of Pakistan. However, the main issue in this case is that Turkey wants to improve relations with India also because of the IMEC issue. Because if IMEC becomes what it was, then Turkey would be left on the side. From Haifa, it will straight away go to where? Piraeus in Greece. So therefore, if they want to be part of it and useful, and India is very useful thing in this IMEC issue. Of late, if you notice, Turkey's support, all this thing is quite muted. So my own sense is that Turkey will again say the way China does it. They may continue providing some drone because they have made a great strides in the drone technology. So they may provide some drones and all those things to Pakistan. However, some major support, I don't visualize. Excuse me, a couple of points here. For those who want to know more about IMEC, Major General Chaturvedi has a chapter on IMEC. I mean, one question which I'd like to ask, when you say about terrorists entering, ISI terrorists entering Kashmir or anything, you see, there seems to be some local support for terrorists. With the Kashmir, somebody in Kashmir, whether it's Gujars or Bakarwals or somebody is supporting terrorists, first thing. And second thing is we are so keen to stop water. Why don't we blockade the Karachi port? I mean, General Chaturvedi has been in tri-service. So I think you're the best person to answer that question. Why don't we blockade Karachi? Rishi, there are two things in this case. If you openly do blockade, it's a declaration of war, which you cannot at this stage do it. However, by putting Vikrant where it is, you are scaring off all those who are trying to come to Pakistan. So you are de facto doing blocking, but not de jure. So certain things we can't speak because the government of India has issued certain directions. We should not be speaking on this issue. And they're saying that, it's an open domain that Vikrant has moved out from its base. So that's why I'm... Sir, may I, since the Armenian friend has asked a question, may I just chip in if I've understood the centrality of his question? Please, sir, please. The pointer in your question is about Indo-Turkey relationship. You have a point. It's well taken. That I personally feel the government of India is already keeping it in the back of the mind while evolving its foreign relations with countries, like Turkey. One. Number two, there is only one permanent thing. There is only one thing which is permanent. That is the national interest. You have your interest. You know about our relationship with Armenia, and we understand what you are trying to say without saying it. How Turkey is imposing itself by actually giving support to Azerbaijan. We are fully aware of it. Not to worry, but Pakistan is being supported by Turkey, that which General has already brought out. Whether it is Bayraktar, that is the drone, or the UAV that you talk of, and a kind of unconditional support in whenever J&K issue is raised anywhere in the international fora. That point I think is well taken. Beyond this, I think we should not discuss too much. As regards a point which was made by Rishi, yes, no insurgency can ever thrive or sustain without the local support. The local support that the Valley had way back in 90s and early 2000 has declined significantly. It is almost close to zero now. So instead of taking this particular zero status of local support forward in a progressive and a forward-looking roadmap, I think prudence would lie in capitalizing the victory that we have achieved over 30 years of terrorism, counter-terrorism operation, and need to find out as to how this local support is getting away from our hand, how best it can be stopped.
That is the thing. And last but not the least, I would suggest to the chair that this is all history we are discussing. It would be good and worthwhile if we talk about how to prevent a recurrence of Pahalgam carnage, how to prevent how Pakistan is behaving today. Why has India done a thing like Indus Water Treaty? Today, it is revocation or suspension of Indus Water Treaty. Why couldn't it do in 2019 when Balakot took place? Because this was tabled at that point in time. I am very aware of it. In 2016, when the Uri attack took place, this was under active consideration because in Northern Command, there were certain deliberations which had actually happened. But that's it. Because there is a requirement for a national spirit and course of action wherein we need to be proactive in certain things. Wasn't there any scope to have preempted? 9/11 took place, USA didn't come to know. When the Hamas attacked Israel IDF, 7th October, Israel didn't come to know. When Kargil happened, we are again pointing at the finger of ain't failure. Galwan happened, ain't failure. So how long are you going to keep pointing the finger in the intelligence failure? Don't we have, when we are talking in terms of the AI, artificial intelligence, autonomous support system, and host of other high technological critical developments taking place in the world, isn't there any means and methods to actually preempt the enemy, to prevent us as being surprised? I think this is the moot question which should actually drive our further discussions, if there is any, on the subject in future. वेबिनार को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले एयर कमोडोर संदीप जोड़ी से जुड़े हुए हैं, वो कुछ बात कहना चाहेंगे। There is one more question in the question box. Okay, sir. अच्छा, Devi Prasad. इस सर का है मेरे ख्याल, इंडस रिवर, हाँ। He has written as some note, a wild idea, and actually no law can actually stop us from this. What if we collect all the treated water, sewage water from major Indian cities along Indus River, and also collect industrial effluent water from major industrial hub along the way, and set up a water treatment plant 10 kilometers away from border, and transfer all this water to that plant and make that effluent water go into Indus water just before it gets into Pakistan. Law does not prevent this. No, sorry. This is unethical, inhuman, and we should never do it. Right. We fight our battles in a dignified manner, and we don't do this kind of a thing. Let Pakistan do any such thing. We never do it. And nobody ever does it, because, as I said, that UN convention, though we are also not a signatory, but we don't steal away the riparian right of Pakistan from water. That's what I'm saying, that totally stopping Western River waters, we are not going to do it also. Let them have their water, but then we will control that water. That is what my point is. धन्यवाद। अब मैं इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर श्री संदीप कुमार सर से आग्रह करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। Firstly, I would like to thank my ex-boss, General Chaturvedi, and my ex-coursemate, Sudhagarji, for coming here and, conducting an excellent session on the current happenings which are there, like the cancellation of Indus Water Treaty and what is happening in, what has happened and after effects of Pahalgam. Thank you very much. I just want to say a few words. While Indus Water Treaty, the points which are brought out are excellent. His points regarding the absence of mutual trust, which has, from 1948 onwards and 60, that absence of mutual trust on this, though the treaty was done, mutual trust was not there between India and Pakistan. That was well brought out. India is actually giving 80% of the water going to Pakistan. If planned, water could have been, channelized to Rajasthan, Gujarat, and MP, if planned, because there was a plan. There was a meeting making all the rivers in India meet. There was a plan by the government of India. There was an excellent plan. So if that
If that has probably happened, this also would have come into it, and it would have been a very nice thing, and you could have made places like, there are places in MP, places in Rajasthan, places in Gujarat, which are actually looking for water. This didn't happen. I just wanted to bring this point. Then the other thing is that, I asked the question about 100 mF. So, like you already answered it well, sir. 100 mF take a decade, General Sudhakar said, it is take 15 years. So it is in our control that you have made it absolutely correct. Send the water when they don't require it, and when they require it, hold it. So this is the best way of doing it, and it is going to affect, like they have done it against our civilians, or I would say the attack was on people who had gone for tourism. This will attack their people who are making food for them and various things. That's the way it is done, and I'm sure the government of India and the Prime Minister had thought about that and then given this statement. Then I just want to make a point about Brahmaputra. Somebody asked a question. I think Devi Prasad asked a question. I've been there and I've walked all over the place. Sangpo, if it is stopped, it will only affect Lohit River, which is coming from Kibitu, Walong, and this thing. And how much it will affect, because Sangpo gets, it becomes ice. Most of the time it is, there is no water flowing in it. Whereas the maximum water coming into it is from east Subansiri, west Subansiri, Siang. Siang is most violent sea which I have seen. You can make out when it joins Subansiri and comes into this thing. You can see the change of color, like Yamuna and Ganga are meeting. So I would like to say, China makes 10 dams. It is not going to affect Brahmaputra at all. 10% water which is coming through Lohit may get affected, and that only during the rains. Otherwise, most of the time it is in the form of ice. Yes, this is as far as the Indus Treaty is concerned. And I would like to just make a point regarding the what is going to happen, what is things that are happening. If you see, a lot of misinformation campaign going on. Everybody is looking at WhatsApp, this thing, news, things like that. Videos are coming, and what exactly has happened is, the misinformation campaign to ensure that people are divided in India. Why that? And there is they have to keep India divided, that because India is a country with, anybody can say anything. Even the politician can say anything. The people can say, all people can say anything, because we are a democracy, an inclusive democracy with secularism as one of the parts. So we are free to talk. And that free to talk is going to make people fight at each other. And, if you see, I've seen a lot of WhatsApp groups, a lot of groups that keep fighting each other, and then good friends, co-mates, they make, become biggest enemies. This I have seen it happening everywhere. So this is what exactly, because today what's happening, the social media is hacking your mind. And that mind hacking is happening, and that is how people will get divided. Whereas this particular thing which is happening is purely because of Western influence. They want to make India, they're feeling India is becoming an economic power. They can't accept it. If you see Western countries and, including America, they cannot accept India becoming a, economic power. They have seen how China has done it. China has done all the things by taking their help, becoming a manufacturing hub. They have become, now the entire West is dependent on China as far as cheap stuff is concerned. So they don't want it, the same thing to happen in India. Then though everybody in the world is saying, it is Asian century or whatever it is, the West is not accepting this particular thing as far as since they are feeling the heat of things, because we have good manpower, educated manpower, and youngsters who are actually doing their work. And what is a way ahead for us? In this, a war, a total all-out war is not, which has already been brought out by Sudhakarji. That is not the solution. A war will pull back us, and all our forward movement in becoming a self-sustained economy, that is Atmanirbharta. If an all-out war happens, we will economically go backwards, and that is what they want. So therefore, what we have to do in this thing is, we have to do a well-coordinated offensive against Pakistan. When I say offensive, it is not war. So it is in the domains of diplomacy, in the domains of natural resources, in the domain of economy, in the domain of unity of Pakistan. Then in the domain of, in the activation of LC, IB, air and sea. So that various types of warfare are there. So in all, it's all a coordinated effect on this particular aspect has to be done.
So without getting into a war and without affecting our economic progress, without affecting our manufacturing and without affecting our service industries, that has to be done. That's the only way out. And I'm sure government of India would be doing that. Pakistan and India was divided into two, being it's a thing which happened, and we cannot keep cribbing on that. We have to do what we have to do, and we have to be very focused on that. And it is very sad to see our own people who are our own representatives, trying to ask for proof, trying to ask, speak against this thing. That's a thing which again supported by the Western countries and to a great extent by China also. They also don't want India to become an economic strength. So this has to go. And also I would also say this is another action which, because they have to, West has to keep Pakistan alive. Pakistan has to be kept alive. And the best way to keep Pakistan alive, which is in a state of division. In fact, there is some organization in the Gilgit-Baltistan POK area. They have made a president and making that they want to join India, and all those things are happening. And in the same time, Sindh also there is some problem happening. Balochistan, what is happening, you are aware. And in Fatah area, they are already saying that we don't accept Durand line. They are wanting to have the entire Pashtunistan separately. So there is a division in that. If there is a war in which India initiates or Pakistan initiates, this will ensure their unity, Pakistan unity. That's another way of looking at it, because all these things happening. And that's why they are aimed at tourists who are, unarmed and things like that. So that's all from my side. This is an ongoing thing, and I'm sure we will continue with this series of discussions on this issue, because this is the end thing which is happening now. And I would once again thank General Ajay Chaturvedi sir and General Sudhakarji for conducting an excellent session today. And on behalf of Indus International Research Foundation, we thank you very much, sir, and so kind of you to have spared your time to conduct this webinar. Thank you. हालांकि आमंत्रित वक्ताओं को धन्यवाद हमारे अध्यक्ष ब्रिगेडियर संदीप सर ने दे ही दिया है, लेकिन मैं पुनः इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आमंत्रित वक्ता मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी एवं मेजर जनरल सुधाकर जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर संदीप कुमार सर, जनरल सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन राजशेखर मेहता सर एवं अन्य IRF के सदस्य ऋषि जी सर, संदीप जौहरी सर एवं अन्य पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व वायुसेना अधिकारी, नौसेना अधिकारी, हमारे स्कॉलर्स, आर्मी से जुड़े हुए स्कॉलर्स, नायरा मैडम जो कुछ समय के लिए जुड़ी थी, हमारे स्कॉलर मोहित शंकर सिसोदिया एवं अन्य स्टूडेंट्स का आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला। लेकिन ये समय राष्ट्र के लिए निकालना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि विषय को समझना आवश्यक है। व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य के माध्यम से गलत सूचनाएं आदान प्रदान नहीं करना है। ऐसे मौके पर भारत के सभी निवासियों को एकजुट रहना है और विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने मस्तिष्क को ओपन रखते हुए, जैसा कि संदीप सर ने कहा कि सीधा युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध बहुत सारे प्रकारों से लड़ा जा सकता है। धैर्य बनाए रखे, भारतीय सरकार निश्चित रूप से निर्णायक कदम उठाएगी और भारत विजयी होगा। धन्यवाद, आप सभी का आभार। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।